और आपको सीधे लिए चलते हैं नेशनल मीडिया सेंटर, जहां पर टीकाकरण और स्वास्थ्य तैयारियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। By Rajesh Bhushan ji. Afterwards, DG ICMR Balram Bhargav ji will give his comments, followed by remarks by Dr. V.K. Paul ji. Then we'll take a few questions. Over to Shri Rajesh Bhushan ji. नमस्कार। हम आपको 3 हिस्सों में आज जानकारी देंगे। पहला हिस्सा जो है वो कोविड और ओमिक्रॉन की स्थिति विश्व और हमारे देश में। दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि प्रिपेयर्डनेस या तैयारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की उसकी क्या स्थिति है, और फिर हम आपको कुछ वैक्सीनेशन के बारे में भी बताएंगे। ये जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि विश्व के स्तर पर विश्व इस समय चौथी सर्ज देख रहा है। इसको नहीं भूलना चाहिए। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 केसेस आए। सो द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द 4th सर्ज and the overall positivity is 6.1. So therefore, please don't operate it. I have it here. Thank you. So therefore, we have to be on guard, and we cannot afford to loosen our guard. We cannot afford to slacken. हमें पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता बरतनी है। This is how the different continents are witnessing the trend of COVID cases. This includes all variants of COVID. If you see this, the first thing you will realize is that while Europe, North America and Africa are seeing an increase in COVID cases week on week, it is Asia that is still witnessing a decline in COVID cases week on week. विश्व में यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में कोविड के केसेस 26 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक हर सप्ताह लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एशिया में ये केसेस अभी भी घट रहे हैं। अगर भारत में देखें तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहाँ पिछले 2 सप्ताहों से जो औसत नए केस प्रतिदिन आते हैं वो लगभग 7,000 हैं, 6,900। और अगर आप ये देखें कि 10,000 से नीचे नए केस कब से आ रहे हैं, तो पिछले 4 सप्ताहों से। फॉर द लास्ट 4 वीक्स इंडिया हैज़ बीन रिपोर्टिंग less than 10,000 new cases every 24 hours, and if we look at the average new cases for the last 2 weeks, it is roughly 7,000. So while these numbers are low, however, as I have submitted earlier, we must keep up our guard and we must be vigilant. In India, we have seen 2 surges so far. I had just shown you the global trends. The world has seen 4 surges. 4th surge is currently being witnessed in the world. India has seen 2 surges, one in September 2020 and second in May 2021. Presently, the cases are on decline, so are the daily new deaths. If we look at the case positivity, I had shown you that globally the case positivity is more than 6%. In India, the case positivity is 5.3%. However, to get a better picture, if we look at the last 2 weeks positivity, it is less than 1%, 0.6. However, there are regional variations that we will be highlighting. So which are the states that are reporting still a very high number of cases? They are Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka and Mizoram. Kerala is still reporting almost, if we look at last 2 weeks, 45,000 cases, Maharashtra 11,000 cases, Tamil Nadu more than 8,800, West Bengal 7,600, Karnataka 4,000 plus and Mizoram 2,500 plus. What is the cause of concern for us
is the case positivity in Kerala, which is 6.1, and in Mizoram, which is 8.2. So compared to the national case positivity, which we have just shared to you, both Mizoram and Kerala are showing very high case positivity still. And we have also shared with you of the total number of tests that these states do, what is the share of RT-PCR. Ideally, RT-PCR should be in the region of 60 to 70% of the total tests that are conducted. However, there are certain states here where that percentage is still significantly lower. There are 20 districts in the country where case positivity is more than 5% but less than 10%. देश में 20 जिले ऐसे हैं जहां की जो पॉजिटिविटी की दर है वो 5% से ज़्यादा है लेकिन 10% से कम है। इन 20 जिलों में से 9 केरल में हैं, 8 मिज़ोरम में हैं, 1 सिक्किम में है, 1 मणिपुर और 1 पश्चिम बंगाल में है। उसी प्रकार से 2 जिले ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है। तो इस प्रकार 22 जिले ऐसे हैं देश में जो कि हमारे लिए चिंता का विषय हैं और इन राज्यों से जिनमें ये जिले स्थित हैं हम लगातार कंसल्टेशन में हैं, परामर्श में हैं और हमारी केंद्रीय दल भी इन जगह पर भ्रमण करके टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो ये 2 जिले जहां 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है ये मिज़ोरम में है। अब हम ओमिक्रॉन की बात करेंगे। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो विश्व में 108 देशों में 1,51,000 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 26 इसमें मृत्यु रिपोर्ट हुई हैं। जो 10 देश हैं अधिकतम संख्या के आधार पर वो हैं यूके, डेनमार्क, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और एस्टोनिया। यानी 10 देशों में मैक्सिमम जो कोविड के केसेस हैं उसमें यूके में 90,000 से ज़्यादा केसेस हैं, डेनमार्क में 30,000 से ज़्यादा केसेस हैं, नॉर्वे और कनाडा में 5,000 से ज़्यादा हैं, यूएसए और जर्मनी में 3,000 से ज़्यादा हैं और साउथ अफ्रीका में 1,600 से कुछ अधिक हैं। ये हमने विश्व के नक्शे पर भी आपको कलर कोड के माध्यम से ये दिखाया है कि ओमिक्रॉन का स्प्रेड क्या है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक WHO ने ओमिक्रॉन के बारे में किस प्रकार के गाइडेंस दिए हैं। WHO ने 7 दिसंबर 2021 को ये कहा कि ओमिक्रॉन हैज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा। इसका अर्थ ये है कि जिस रफ्तार से डेल्टा फैलता है उससे कहीं अधिक रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है। WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस डबल होते हैं 1.5 दिन से 3 दिन के अंदर। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। इसलिए हमारा परामर्श राज्यों को और आपके माध्यम से सबको ये है कि हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत सख्ती से अपनाने की आवश्यकता है। दूसरा, WHO ने ये कहा कि अ हायर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन compared to Delta has been confirmed by household and contact studies in United Kingdom. यूके में जो स्टडीज़ हुई उन्होंने बताया कि घर के भीतर और जो पॉजिटिव ओमिक्रॉन व्यक्ति के कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन संतोष की बात यह है कि WHO का ये भी कहना है और हमने भी अपने देश में देखा है कि जो थेरेपेटिक इंटरवेंशन है यानी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं जो कोविड के लिए हमने अपनाए थे और डेल्टा के लिए भी अपनाए थे वो भी VOC है, वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन पर भी प्रभावी होंगे। लेकिन फिर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न और हाई रिस्क वेरिएंट क्यों माना जा रहा है? इसके लिए WHO ने 3 कारण दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो हमने आपसे शेयर की। उन्होंने ये भी कहा है
कि हालांकि एविडेंस अभी भी इमर्ज कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इम्यून एस्केप का जो पोटेंशियल है इस VOC का, वायरस ऑफ कंसर्न का, वो ज़्यादा है, यानी इम्यून सिस्टम से वो एस्केप करता है। हाई ट्रांसमिशन रेट भी हैं जिनसे कि मल्टीपल सर्जेस हो सकते हैं और भविष्य में भी सर्जेस हो सकते हैं। ये 17 दिसंबर को WHO ने कहा। उसके बाद 22 दिसंबर को उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो भी हम आपके ध्यान में लाना चाहेंगे। 22 दिसंबर को WHO ने एक ब्रीफिंग आयोजित की। उसमें WHO के डायरेक्टर जनरल ने ये बोला कि ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले अधिक तेज रफ्तार से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैंकेट यूज़ ऑफ बूस्टर डोजेज के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? उसका उन्होंने कारण दिया। उन्होंने ये कहा, नो कंट्री कैन बूस्ट इट्स वे आउट ऑफ द पेंडेमिक एंड बूस्टर्स कैन नॉट बी सीन एज टिकट टू गो अहेड विद प्लान्ड सेलिब्रेशंस विदाउट द नीड फॉर अदर प्रिकॉशंस। साधारण हिंदी में इसका अर्थ ये है कि केवल बूस्टर लगा लेने से अगर आपको लगेगा कि पेंडेमिक से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बूस्टर मिल गया, इसलिए आप तरह तरह के उत्सव और त्योहारों में भाग लें, ऐसा भी ठीक नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं WHO कि वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ अन्य कदम भी महत्वपूर्ण हैं। अन्य कदम क्या हैं? अन्य कदम है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, आप भीड़ भाड़ से बचें, आप अगर आपने दूसरा डोज नहीं लिया है तो उसको लें, यदि आपके पास लक्षण आपको दिखते हैं तो आप अपने को टेस्ट कराएं, आइसोलेट करें। इस प्रकार के स्टेप्स अभी भी लिए जाने होंगे वैक्सीनेशन के बाद भी। WHO में ही जो उनके चीफ एनालिस्ट हैं अब्दी मोहम्मद, उन्होंने कहा, ऑल्दो वी आर सीइंग अ रिडक्शन इन द न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज, almost all data shows T cells remain intact. That is what we really require. While the antibody defenses from some courses have been undermined, there has been hope that T cells, the second pillar of an immune response, can prevent severe disease by attacking infected human cells. अब ये कॉन्सेप्ट दो हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप टीका लगाते हैं तो आपके शरीर में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज तैयार होती हैं और वो फिर बीमारी से लड़ती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपके शरीर में टी सेल्स भी होते हैं और वो टी सेल्स याद रखते हैं बीमारी को, और जब भी बीमारी पुनः आती है तो वो फिर सामना करते हैं। तो केवल ये कहना कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर नीचे आ गया इसलिए अब मैं खतरे में पड़ गया हूँ, ये संभवतः ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर आपका न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स नीचे आ रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, विच दे डिक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट दे डोंट बिकम जीरो। इट इज नॉट ऑल एंड नथिंग सिनेरियो, या तो सब कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, ऐसी स्थिति नहीं है एंटीबॉडी टाइटर्स के मामले में। वो धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन जब तक वो एक डिफाइंड थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं तो वो बीमारी का मुकाबला करेंगे। इसके साथ साथ टी सेल्स भी बीमारी का मुकाबला करते हैं, यही अब्दी महमूद कहना चाह रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट किस प्रकार से फैला। ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं वो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या है। इस समय देश के 17 राज्य और संघ शासित क्षेत्र 358 ओमिक्रॉन केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं। So there are now 358 Omicron cases in 17 states and UTs of India. We will now show the same figure in India's map. So there are 17 states and UTs, 358 cases, and 114 of them have recovered. So this is also important. We have also shared with you the breakup of these 350 cases state-wise and UT-wise, as well as the number of cases that have recovered state-wise and UT-wise.
Equally important is a analysis of 183 cases that has been done. 183 Omicron positive cases. So out of these 183 cases that were analyzed, we found 121 had foreign travel history. हमने 183 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें से 121 केसेस की फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी। 44 मामलों में फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन अधिकांश फॉरेन ट्रैवल्स के ट्रैवलर्स के कॉन्टैक्ट्स थे और 18 लोग ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो 39% ओमिक्रॉन पॉजिटिव मामले इस 183 में महिलाएं थीं और 61% पुरुष थे। वैक्सीनेशन स्टेटस एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इन 183 में से 87 लोग फुली वैक्सीनेटेड थे और 3 लोग ऐसे थे जिनको कि 3-3 डोज मिली हुई थी। इन 3 मामलों में से 2 मामले दिल्ली में और 1 मामला मुंबई में पाया गया है। 7 लोग अनवैक्सीनेटेड थे, 2 लोग पार्शियली वैक्सीनेटेड थे यानी उनको 1 डोज मिली थी और 16 लोग ऐसे थे जो इनएलिजिबल थे यानी जिस भी देश से आ रहे थे उनके नेशनल वैक्सीनेशन कार्यक्रम में उस आयु वर्ग को नहीं कवर किया जाता था, तो इसलिए हम उसको दिखा रहे हैं। और 73 लोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन स्टेटस अननोन है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है और इसको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। भारत सरकार इस स्थिति के प्रति पूरी तरह से सचेष्ट है। 27 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में लगातार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के साथ विमर्श किया है, जिसमें नीति आयोग की ओर से डॉक्टर पॉल और ICMR और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की ओर से डॉक्टर बलराम भार्गव और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सचिव डॉक्टर गोखले और अन्य जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो शामिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 नवंबर से लेकर आज तक 2 बार बहुत विस्तार से पूरे मामले की समीक्षा की है और व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी 25 नवंबर से ही लगातार हर दिन सुबह 9:30 बजे इस मामले की दैनिक आधार पर समीक्षा कर रहे हैं ताकि भारत सरकार का जो रिस्पॉन्स है वो रियल टाइम में लिया जा सके। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि 21 दिसंबर को भारत सरकार ने राज्य सरकारों के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट जारी किया था, जिसमें ये कहा गया है कि यदि किसी भी ज़िले में टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा होती है, वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी, और बेड ऑक्यूपेंसी ऑक्सीजन बेड्स की या ICU बेड्स की 40% से ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन किए जाने चाहिए। ये इंटरवेंशन कंटेनमेंट, टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस, क्लिनिकल मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से संबंधित हैं। किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएं उसके उदाहरण भी भारत सरकार ने इस पत्र में दिए हैं और हमें ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि अनेक राज्यों ने इसका पालन 21 तारीख के बाद से करना शुरू कर दिया है। अब कुछ बात हम तैयारी की करेंगे। पहली और दूसरी जो सर्ज हुई हमारे देश में, उसके अनुभव के आधार पर हमने देश भर में 18 लाख से ज़्यादा आइसोलेशन बेड्स तैयार किए हैं। 4,94,000 लगभग 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार हुए हैं। 1,40,000 के लगभग ICU बेड तैयार हुए हैं। 24,000 पीडियाट्रिक ICU हैं, बच्चों के ICU। 64,000 पीडियाट्रिक नॉन ICU, बच्चों के लिए नॉन ICU बेड्स तैयार हुए हैं। इसके अलावा इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज 2 ECRP 2 जिसे कहा जाता है, की घोषणा भारत सरकार ने अगस्त महीने में की थी, अगस्त 2021 में। ये 23,123 करोड़ का पैकेज है। इसकी 50% राशि राज्यों को हमने रिलीज़ कर दी है, जिससे कि वो 96,000 एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स तैयार कर रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा ICU बेड तैयार कर रहे हैं
और 9,000 से ज़्यादा पीडियाट्रिक आईसीयू बेड तैयार कर रहे हैं। तो तैयारी का एक पहलू आईसीयू और ऑक्सीजन बेड से संबंधित है, जो राज्यों के सहयोग से बहुत तेज़ी से हुआ है, उसकी उपलब्धि और भविष्य में वो क्या करेंगे वो भी हमने आपके साथ साझा किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई का है। हालांकि अभी तक जो विश्व का अनुभव है और साउथ अफ्रीका का अनुभव है, उसमें ओमिक्रॉन के मरीजों को अतिरिक्त ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। एडिशनल मेडिकल ऑक्सीजन हैज़ नॉट बीन रिक्वायर्ड based on the experience of South Africa and other countries of the world. However, we need to be vigilant, as I have said, we need to be proactive. So this is what we have done. आप लोगों को स्मरण होगा कि जब पहली वेव हमारे देश में आई थी तो उस समय जो टोटल मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई किसी भी एक दिन में सबसे ज़्यादा, तो वो 1,000 मेट्रिक टन की थी। दूसरी वेव के समय वो बढ़कर 10,000 मेट्रिक टन हो गई। So there was a 10-fold increase in the demand of medical oxygen from first wave to the second wave. That is from September 2020 to May 2021. And because of the collective efforts of the union government and the state government and all ministries of Government of India, we were able to address that 10-fold increase, and we managed to supply that 10,000 metric ton medical oxygen. Today, we have created a capacity of 18,800 metric ton of medical oxygen per day. So that is the kind of significant increase that we have done after the second surge. We will now talk of vaccination. This is another significant achievement. 89% of the entire adult population of our country has received at least one dose. देश की वयस्क जनसंख्या के 89% लोगों को कम से कम एक डोज मिल गई है। 61% of the adult population of the country is fully protected. They have received both the doses. 61% देश की जो वयस्क जनसंख्या है उसको दोनों डोजेज मिल गई हैं। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 140 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। 19 राज्य ऐसे हैं जिनका कि पहली डोज का कवरेज 90% से भी ज़्यादा है। नेशनल एवरेज इज 89% एंड दीज आर 19 states which have done more than 90%. There are states you will see here who have done 100%. However, the cause for concern for us are these 11 states where the first and second dose coverage is less than the national average. So we have engaged with these states on a continuous basis. Our last such review was yesterday. ऐसे 11 राज्य और संघ शासित क्षेत्र जहां पहले और दूसरे डोज का कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है, उसकी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। इनके साथ हमारा लगातार परामर्श चलता है और हमने अंतिम समीक्षा जो इन राज्यों के साथ की थी वो कल जो गुजर गया की, और उसमें इस तरह की रचना बनाई कि इसको और कैसे बढ़ाया जा सके। तो आगे जाते हुए हमें क्या करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल समीक्षा की बैठक आयोजित की थी उसमें उन्होंने कहा कि सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। सतर्क और सावधान हम उन 5 स्तंभों पर आधारित मिशन मोड अप्रोच को लेकर ही रह सकते हैं। So this whole strategy of being satark and savdhan is based on the 5 pillars of test, track and surveillance, treatment, vaccination and COVID appropriate behavior. हमारा ये कहना है कि राज्यों को टेस्ट्स की संख्या बढ़ानी होगी और टेस्ट में RT-PCR और रैट का जो प्रोपोर्शन जो मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले, उससे कंप्लायंस उसका करना होगा। अगर आपके RT-PCR टेस्ट कम हो रहे हैं तो उनकी संख्या को बढ़ाना होगा। ट्रैकिंग और सर्वेलेंस जरूरी है। टेस्ट आपको केवल ये बताता है कि कितने लोग पॉजिटिव हैं। जो लोग पॉजिटिव हैं उनके कौन कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या वो कॉन्टैक्ट्स आप ट्रैक कर पा रहे हैं, क्या उन कॉन्टैक्ट्स के आप समय पर टेस्ट कर रहे हैं।
और क्या आप ये पता लगा पा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट्स में कितने पॉजिटिव हैं? तो ये दूसरा पिलर है। तीसरा ट्रीटमेंट पर है, जिसमें ऑक्सीजन और बेड्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। हमारा ये भी कहना है और WHO का भी कहना है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं वो इस पर प्रभावी हैं, तो उस पर काम करने की आवश्यकता राज्यों को है। साथ ही वैक्सीनेशन अभी भी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने आज भी पहली डोज नहीं लगाई वो लगाएं, जिनकी दूसरी डोज का समय हो गया वो दूसरा डोज लगाएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अत्यंत आवश्यक है। तो ये जानकारी हम आपके साथ आज साझा करना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. I will just emphasize 2 or 3 points of what has already been indicated in this beautiful presentation. Number one, the predominant strain in India is Delta, including the recently identified clusters. They all continue to be Delta predominantly, and therefore we need to continue with this same strategy of COVID-appropriate behavior and ramping up the vaccination. The second point is regarding the infection with Omicron does not necessarily lead to severe symptomatic clinical disease. And as you have seen in the presentation, in India, about a third of all the detected cases, all the detected cases were mildly symptomatic and the rest were asymptomatic. Therefore, the last point that I want to emphasize is that the treatment of Omicron, the treatment for Omicron infected symptomatic individuals remains the same. It does not change from that for Delta or the Alpha or the Beta, so it remains the same as with the earlier variants, emphasizing the point that the treatment remains the same. Thank you. Thank you. The Honorable Prime Minister reviewed the pandemic situation with special focus on Omicron issues and emphasized 4 major areas for our preparedness, among others. It's about infrastructure preparedness, which is all across the nation in all the districts. District level infrastructure preparedness and systems preparedness was his first message. He emphasized the need for contact tracing, containment, as per protocols. And in that, you have seen from the letter that was issued by Secretary Health, we are continue to enforce the notion of containment zones, buffer zones, surveillance, and so on. This good old surveillance and containment strategy remains a very major approach to pandemic control. We have vaccination, but vaccination alone is not sufficient to contain this pandemic. Therefore, a special emphasis on contact tracing, quarantine, containment, perimeter control, buffer zones is very clearly articulated in the letter, in the communication that has been sent to the government, and the Prime Minister also emphasized that. He also emphasized us to accelerate vaccination. We are proud to say that 60% of adult population has now received both the doses, but we have to make sure that no one is left behind, and this work is completed through the participation of all the citizens. Quickest possible time. That's the next instruction to us. And as a nation, he coded us to be Satark and Savdhan, alert and ready. And that's what we bring forth to you by way of a very detailed presentation on the infrastructure, and you have noticed how the beds, preparation, ICUs, and how the money has been used by the state governments, provided by the union government. And in particular, today we also unveiled in front of you the oxygen availability matrix in all its details, including escalation in production, availability,
as also the huge scale up in the PSA plants all across the nation. 2 days ago, a special effort was launched to ensure that the healthcare providers, our nurses, our allied professionals and doctors and others are mindful of using the precious resource of oxygen with care, with frugality, and with rational use, and ensure that it is not wasted. You may recall we talked about wasting of vaccine doses. Equally important is to prevent the wasting of oxygen, which is a life-saving commodity. We need it. It's life breath. And a nationwide program has been launched 2 days ago, which among other things encompasses a specific oxygen stored at the district level, and then teams at the facility level. So a huge, intense, responsible, comprehensive approach to oxygen sufficiency, oxygen availability, and coordination in that regard. In that, I may also add that we now have a portal where supplies, distribution, availability is being tracked online. You also noticed other facets of our preparedness, and that is the focus here. I would now like to request our private health sector also to be ready. The preparedness includes the entire health system level preparedness, and the private sector has played and continues to play a very, very important role in managing this pandemic at the national level. And they have been part and parcel of the national infrastructure. We would like to specifically request the entire private sector teams to also get ready in terms of how they will repurpose the beds should the need arise. We would request them to do the audits and the oversight of their drugs availability, oxygen availability, and really go back on their own facility-specific SOPs so that we are truly ready. And in the same way, in particular also, we will remind all of us that human resources are very important. These are infrastructure that you saw, but to run them, we need teams. And here again, a huge effort has been mounted by the government to create teams and to train them. And someday we'll show more details of that. But the same thing also applies in the private sector, that the teams should know how they will be deployed. And therefore, an overarching preparedness in the wake of the Omicron threat be launched, be undertaken, be enforced, be established in our nation. That's our first message. My second message is to emphasize the need for care. ये फेस्टिवल्स हैं, न्यू ईयर है, और हम देख रहे हैं कि इसी में ही ये नई मुसीबत की एक शंका हो रही है. तो इसमें निर्देशों के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं कि आप इस रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकते हैं. इसका एग्जांपल एक है कि गैदरिंग्स नहीं हो. दूसरा अच्छा एग्जांपल है कि नाइट कर्फ्यू हो. कुछ राज्यों ने इसको इन्वोक किया है, कुछ कहूँगा कईयों ने करा है. तो ये भी हम याद दिलाते हैं कि जिस तरह की लोकल सिचुएशन है उसके बेस के ऊपर ये वेल ट्राइड आउट जो मेजर्स हैं, सोशल मेजर्स कह लीजिए उनको भी इन्वोक होना चाहिए, और जनता को सबको लेके साथ में इस चीज़ को भी इन्वोक करना चाहिए कि जो सिचुएशन एक वायरस और हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस को आगे बढ़ाती है उनसे हम बच के रहें, उसको बढ़ोतरी मत दें, एनकरेज नहीं करें. इनफैक्ट थोड़े रिस्ट्रेंट से, थोड़े डिसिप्लिन से हम इस फेज़ में बचेंगे तो जो एक सिचुएशन पैदा हो रही है उसको हम एक रोकने में, कंट्रोल करने में, रिटार्ड करने में, दबाने में हमें मदद मिलेगी. एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज अ वे फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ अस at all levels, individual, family. And we have emphasized those facets time and again. Individual discipline, wearing mask, hygiene, no crowding, unnecessary travel to be avoided, not to be in large groups, not to create large groups.
So individual behavior, systemic response by way of surveillance strategy and by way of the required restrictions on at a societal level, and of course constant vigil, सतर्कता और सावधानी, ये हमारे लिए आज का मंत्र है। इसी को हम आपके समक्ष प्रस्तुत हमने कोशिश करी है। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. We'll now take some questions. Okay, number 5. सर, ब्रह्म प्रकाश जी न्यूज़ से मेरा एक सवाल है। देश के लोग भी थोड़ा उस पर कंफ्यूज हैं, आपसे क्लियरिटी चाहते हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा है। कई राज्यों में आपने नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, लेकिन कई राज्यों में रैलियां हो रही हैं, 2-2 लाख लोग आ रहे हैं, बिना मास्क के आ रहे हैं। उसको लेकर आपकी क्या सलाह है? कल हाई कोर्ट ने भी कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि चुनाव टाले जाएं। आपकी क्या राय है? क्या आप लोग चुनाव आयोग को सलाह देंगे कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कराएं रैलियों में, या रैलियां रद्द हों, या चुनाव आगे बढ़ें? धन्यवाद। आपने एक प्रश्न में अनेकों प्रश्न पूछ लिए हैं, लेकिन उत्तर उसका बहुत साधारण है और बहुत ही सिंपल है। जो 21 दिसंबर को भारत सरकार ने मानक टेम्पलेट जारी किया सभी राज्यों के लिए, और उसके बाद राज्यों की बैठक कर उन्हें समझाया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाना है, उसमें ये बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो लार्ज गैदरिंग्स होती हैं उन्हें कैसे रेगुलेट किया जाना है। उसमें ये भी कहा गया है कि जिला कैसे पॉजिटिविटी को ट्रैक करें, तो डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो जिला स्तर पर उपलब्ध है उस पर डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जो जिला स्तर पर ली जाएगी, उसके भी गाइडेंस उसमें दिए गए हैं। जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय का प्रश्न है या माननीय निर्वाचन आयोग का प्रश्न है, उस पर हम आप सहमत होंगे कि इस मंच पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। Thank you. Okay, 106. Today you quoted the World Health Organization saying that they've warned against the blanket use of boosters. My question is, for now, has India put the booster programs as well as administration of children vaccines on the back burner? I would make preliminary remarks and then men of science would supplement and try to satisfy your question and query. In the Parliament and outside the Parliament, Government of India has very clearly articulated the position that we would be governed by science and scientific evidence on deciding on the need and timing for an additional dose and for lowering the age of vaccination. So our stand remains the same. And when we say science and scientific evidence, I did refer to certain aspects of science and scientific evidence. One aspect relates to antibody titers and their behavior over a period of time. The other aspect relates to T cells and their behavior over a period of time. The third aspect relates to hybrid immunity, where you take one dose of vaccination and then get afflicted by the disease, then recover, then take the second dose. So these are issues that men of science are deliberating. The status of those deliberations would be elaborated by Dr. Paul and Dr. Bhargav. Yeah, thank you. I think it is great discussion is going on these both these aspects which you've raised. There is a COVID working group which has debated on it several times. Then those recommendations go to the subcommittee of the National Technical Advisory Group of Immunization, following which it goes to the main Technical Advisory Group of Immunization, and then to the NEGVAC, and then finally it is accepted by the Ministry of Health. So deliberations are on. We are reviewing all the scientific data from across the world as well as from India. How many, as Rajesh Bhushan ji has mentioned, about T cell response, about antibody response,
about with particular vaccine, with another vaccine, how long it persists after infection. Taking all those into consideration, we are deliberating and we are formulating our policy. Okay, we'll take the next question now, number 11. सर मेरा सवाल है कि कई सारे ओमिक्रॉन के मरीजों को लेकर आपने कहा कि कांटेक्ट नहीं मिल रहे हैं, कितना गंभीर है? क्या कम्युनिटी में लोगों का चला जा रहा कांटेक्ट नहीं मिल रहा, कहाँ पे उनमें ओमिक्रॉन पहुंचा? और दूसरी नंबर चीज़ ये, बतौर रिपोर्टर हम ये समझना चाहते हैं कि नाइट कर्फ्यू कितना अहम रोल अदा करता है, जैसा जिक्र किया पॉल सर ने कि नाइट कर्फ्यू कई राज्यों ने लगाया है। नाइट कर्फ्यू की कितनी भूमिका आप लोग मानते हैं कि वाकई वो बहुत सहायक होगा? Can you repeat your question? Keep the mic a little. हो गया, ओके। नहीं, आपने जो सवाल का कहा है कि ओमिक्रॉन के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दैट इज बीइंग वेरी एग्रेसिवली परस्यूड एज अ पार्ट एंड एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, जहाँ पे मान लीजिए कि ट्रैवलर को मिला, RT-PCR पॉजिटिव हुआ, उसमें फिर ओमिक्रॉन निकला, तो उनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो एकदम से वो तो पार्ट एंड पार्सल है, और जो एडिशनल पॉजिटिव केसेस पाए गए वो ऑफन फिर अगले में भी पाए गए, ऐसा भी है बीच में। तो वो काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन याद रहे कि ओमिक्रॉन का डायग्नोसिस अभी जीनोमिक सीक्वेंसिंग से होता है, वक्त लग जाता है। एक सस्पेक्ट होता है आज पॉजिटिव, और जब तक ये होता है तो उसमें गैप है। ये इस बारी हमें लेके चलना होगा कि ये डिफ़िकल्टी है इस सिचुएशन में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ रियलिटी। और दूसरा जो आपने बात कही है, रिस्ट्रिक्शंस की बात कही है, उसमें मैंने उन चीज़ों का उदाहरण दिया है जो कि कुछ राज्यों ने अपनाया है। एक और उदाहरण है जैसे कि लखनऊ में सेक्शन 144 एक खबर आई थी, तो ये हम राज्यों पे छोड़ रहे हैं, लेकिन याद दिलाई गई है उस लेटर के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा, कि इमर्जिंग सिचुएशन को, ये जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया है उसको नज़र में रखना चाहिए। ये हमेशा से ही था, लेकिन उसको एक इमर्जिंग सिचुएशन जैसे हो रही है उसमें उसको इन्वोक किया गया है। Sir Milan from India Today. There have been many studies done across the world now to understand vaccine efficacy and waning immunity from various vaccines that have been taken. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, they've all published their studies. In India, Covaxin has been taken by a lot of people. They want to know what the government is currently doing to understand whether Covaxin takers need a booster, or whether the vaccine is working against Omicron, like other published studies from across the world. And do you think, my second question is, do you think that political rallies could become super spreader events in the light of a third wave that we are expecting in the country? So okay. In terms of the testing whether the vaccine is working against Omicron, both ICMR and DBT have been working continuously to culture the virus. Initially, we had some difficulty in culturing and growing the virus. Now we have had some success in culturing the virus, both at ICMR as well as DBT. And once we grow the virus, we have also the sera of Omicron-infected individuals, Delta-infected individuals, as well as the original strain. So we have that sera, and we are testing the efficacy of the vaccine on these variants. And as soon as we have the results, we will present it to you without hesitation. THSI की तरफ से एक अच्छी स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें ये दर्शाया गया था कि कोविशील्ड के बाद में एंटीबॉडीज कैसे रहती हैं, टी सेल फंक्शन क्या होता है, जो काफ़ी हद तक रीअश्योर करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेल्टा। तो ये स्टडीज़ भी हैं, एंड आई एम अवेयर दैट सम एकेडमिक ग्रुप्स आर आल्सो परस्यूइंग सच स्टडीज, आल्सो लुकिंग एट स्टेटस ऑफ वेनिंग इम्यूनिटी विद बोथ द वैक्सीन। सो ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, वो सब उसके ऊपर सारी नज़र है, उस काम को तेज़ करने के लिए भी एफर्ट्स हो रहे हैं। इसीलिए हमने कहा है कि ये एक साइंटिफिक
बेसिस के ऊपर है। जिस डॉक्यूमेंट को अभी कहा गया था WHO का, वो ये भी कहते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग बूस्टर डोजेज शुड बी फर्मली एविडेंस ड्रिवन, और वही डॉक्यूमेंट ये भी कहता है कि देयर इज नो ब्लैंकेट जनरल, WHO is currently not recommending the general vaccination of children। तो पूरी टोटलिटी में देखिए, एक उसी फ्रेमवर्क से ड्रिवन बाय साइंस, एंड ड्रिवन बाय साइंस दैट इज एप्लीकेबल टू आवर सिचुएशन, driven by science which is applicable to our vaccines. What you read largely is about different platform vaccines in different settings with different profile of their comorbidities and age profiles in some ways. So it has to be evidence driven, and remember, India's science is very strong. India has top scientists. Our laboratories, our clinical researchers and biomedical researchers have tremendous insights. This is क्योंकि ये अब इमर्ज हो रहा है, तेज़ी से बदलता है, इसके पैरामीटर्स बदल रहे हैं, तो रिस्पॉन्ड उसी चलते चलते करना पड़ रहा है नेक्स्ट स्टेज पे। और जैसे अभी बताया गया कि देयर आर द इंटेंस एफर्ट्स टू कल्चर द वायरस, और एक बार होता है तो टेस्ट करेंगे वैक्सीन को। इसी प्रकार हमें यह भी ज्ञात है कि जो वैक्सीन की कंपनीज हैं और उनके साथ जो जुड़े हुए एकेडमिक ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने वैक्सीन्स को और लेबॉरेटरीज में जहां कल्चर हुआ है वहां भी भेजने की कोशिश की हुई है। हो सकता है वहां से इंफॉर्मेशन आए। तो इन हफ्तों में जो दुनिया भर में जितनी साइंस आगे बढ़ पाई है, उसमें ही डिफ़िकल्टी है। ये भी कहा जा रहा है कि ये वायरस थोड़ा मुश्किल है कल्चर करने के लिए, टाइम लगता है। उन सेम कल्चर जिसमें पुराने वेरिएंट्स अच्छी तरह से पैदा हो रहे थे, उसमें severe understanding, but be rest assured that the decision for adolescent pediatric vaccination as well as for additional dose or booster dose, as the case may be, will be taken, but based on scientific principles and based on the overarching interest of people of India. Friends, it is requested that everybody ask one single question, because you are eating away into the time of the other correspondent, and repetition may not be done because the same thing is asked again and again. So kindly ask, I request you to ask one single question, then we can proceed ahead, and more of you will be covered that way. Okay? That's my request to you. Okay? 32. सर, आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। भूषण साहब से सवाल है, राजेश भूषण साहब से। देखा यह गया कि अगर सेकेंड वेव की बात करें, उस समय भी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी थे और अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है, खासतौर पे विदेशों से आने वाले लोगों के लिए। क्या आपको लगता है कि ये समय आ चुका है कि विदेशों से आने वाले लोगों के लिए, और ख़ासतौर पे जो फ्लाइट्स हैं वहाँ से जो आ रही हैं, चूँकि अभी बबल सिस्टम चल रहा है, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज से? देखिए, मैं पहले बताता हूँ कि WHO ने इस बारे में क्या कहा है और फिर बताऊँगा कि हमने अपने देश में क्या किया है। WHO की गाइडेंस ये कहती है कि मेंबर कंट्रीज़ को इंटरनेशनल ट्रैवल को एविडेंस और रिस्क, दो एलिमेंट्स के आधार पर रेगुलेट करना चाहिए। WHO has not favored blanket ban of international travel. So this is WHO's position. What is it that we have done? हमने क्या किया है अपने देश में? हमने इंटरनेशनल ट्रैवल की गाइडलाइंस में संशोधन किए जो 1 दिसंबर से प्रभावी हुए। हमने ये कहा कि देश 2 श्रेणियों में रखे जाएंगे, एट रिस्क कंट्रीज़ एंड नॉट एट रिस्क कंट्रीज़। एट रिस्क वो देश थे जहां या तो सामान्य रूप से कोविड की संख्या बढ़ रही है और फैलाव बढ़ रहा है, या ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ रही है, और नॉट एट रिस्क वो देश थे जो इसमें नहीं शामिल होते। दोनों देशों से आने वाले इंटरनेशनल यात्रियों को ये परामर्श है कि वो फ्लाइट में चढ़ने के 72 घंटे पहले अपने को RT-PCR टेस्ट कराएं, और वो नेगेटिव टेस्ट होता है उसको फिर एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करें और फ्लाइट को बोर्ड करें। जब हमारे देश में वो डिसएम्बार्क करते हैं तो जो एट रिस्क देशों से आ रहे हैं वो पुनः RT-PCR टेस्ट कराएं, और जब तक वो रिज़ल्ट नहीं आ जाता तो वो एयरपोर्ट के होल्डिंग एरिया में रहें। यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर वो एक इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में जाएं। अलग अलग राज्यों ने इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन की अलग अलग व्यवस्था की है, और उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए ताकि पता चले कि वो ओमिक्रॉन है कि नहीं। अगर वो नेगेटिव आते हैं तो वो अपने घर जा सकते हैं, अपने को 7 दिन
घर में होम क्वारंटाइन में रखें और 8वें दिन अपना टेस्ट करें। तो ये निर्देश हमने दिए हैं। जो नॉन एट रिस्क देशों से आ रहे हैं उनके लिए हम सैंपल चेकिंग करते हैं। 2% पैसेंजर्स आर सब्जेक्टेड टू a sampling at the airport, and once they give their sample they can go, we don't hold them, and based on their sample results and subsequent genome sequencing, if required, further action is taken. 105. सर, री इन्फेक्शन के केसेस का स्टेटस क्या है और उनमें किस तरह का सिम्टम देखा गया है? क्या हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं कि कितने लोगों को हुआ है री इन्फेक्शन? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एक चीज़ होती है जो वैक्सीनेशन के बाद होता है, उसका हम लोग सारा डेटा एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि 100 करोड़ 134 करोड़ 40 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए हैं और करीब 70 करोड़ हमारे पास टेस्टिंग का डेटा है। दोनों को इंटीग्रेट किया जा रहा है और उससे देखा जाएगा कितने % है। बट टोटल जैसे हम लोग के देश में अभी केसेस ही बहुत कम हो रहे हैं, 5000, 6000, 7000 केस रोज़ हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होएगा वेस्टर्न कंट्रीज़ के बराबर, मगर जैसे ही डेटा आएगा वो भी आपको दिया जाएगा। 175. वैक्सीनेशन के बाद जो कहते हैं उसे ब्रेक थ्रू दे दीजिए। 175. मेरा सवाल राजेश सर से है। सर, दिस इज़ तरुण कालरा फ्रॉम टोटल टीवी। सर, मेरा सवाल ये है कि कई महीनों से हम सुन रहे थे कि इस साल के अंत तक हम ज़्यादातर वयस्क आबादी को टीकाकरण कर लेंगे। क्या कमी रह गई रफ्तार में, और फिर नया बेंचमार्क क्या है कि इस डेट तक हम ज़्यादातर आबादी को, वयस्क आबादी को वैक्सीनेट कर पाएंगे? मैं 2 चीज़ें संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। अधिकांश जानकारी हमने अपने प्रेजेंटेशन में दी थी, संभवतः आप बाद में आए होंगे, लेकिन ये प्रेजेंटेशन क्योंकि आर्काइव्स में उपलब्ध होते हैं तो आप उसको देखें। हमारे देश की आबादी आप जानते हैं, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में 89% लोगों को एक टीका लग जाना और उतनी ही बड़ी तादाद में 61% लोगों को दोनों टीके लग जाना छोटी उपलब्धि नहीं है। हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए और उन हालातों को एप्रिशिएट करना चाहिए जहां पहाड़ में रहने वाले लोग, समुद्र तट पर रहने वाले लोग, रेगिस्तान में रहने वाले लोग, खेतों में काम करने वाले लोग, उनको डोर टू डोर वैक्सीनेशन किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चिंता के कौन से इलाके हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए। उस चिंता को एड्रेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। एक और चीज़ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, ये पूरा कार्यक्रम वॉलंटरी वैक्सीनेशन का है, ये कार्यक्रम मैंडेटरी वैक्सीनेशन नहीं है। धन्यवाद। 121. सर, जैसे कि बच्चे भी अब स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे में खासतौर पर जो इन्फेक्शन का केसेस ओमिक्रॉन का आया है, अभी तक उसमें कितने बच्चे हैं, किस तरह की गाइडलाइंस अब स्कूल्स को दी जाएंगी? अभी कोई बहुत डेटा इतना नहीं है विश्व में भी जो कि बता सके कि बच्चों में कोई अलग बिहेवियर है कि नहीं है। कुछ देशों में ये आया है कि बच्चों को इन्वॉल्व करता है। वैसे तो डेल्टा भी कर रहा था, उसके पहले वाला वायरस भी कर रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बच्चों के प्रति इसका कोई खास लगाव है ऐसा भी कोई दिखने में नहीं आया। तो उस तरफ हमें अभी नहीं जाना चाहिए। हमें ये लेकर चलना चाहिए कि children have been part and parcel of the transmission chain and infection due to SARS-CoV-2 in general, and therefore that should be factored in when any decisions are taken for epidemiology, etc. Also keeping in mind that we have consistently learned that the disease is minimal, negligible, and hardly ever serious in children. So I think that overarching message and understanding still very much stays in that shape. Thank you. Number 4. मैं संदीप हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि यूके ने जो स्टडी किया उसमें देखा गया कि घर के अंदर और जो कोविड संस्पर्श में आता है उनको ओमिक्रॉन पाया जा रहा है, उनमें से ओमिक्रॉन पाया जा रहा है। तो घर के अंदर क्यों हो रहा है, ये अगर थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो। और मुझे लगता है कि आप उस बात को समझ नहीं पाए। डॉक्टर पॉल भी बताएंगे, लेकिन मैं संक्षेप में ये बताता हूँ कि वो स्टडी का फोकस होम कॉन्टैक्ट्स और वर्क प्लेस कॉन्टैक्ट्स था।
यानी जो सैंपल ग्रुप था जिस पे वो स्टडी की गई थी, वो घर के आपके और लोग, मान लीजिए कि अगर भगवान न करे आप पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से, तो आपके परिवार के अन्य सदस्यों पर क्या कैसे फैलता है, कितनी जल्दी फैलता है, और जहाँ भी आप काम करते हैं तो आपके वर्क प्लेस पर जो आपके कॉलीग्स हैं उनमें कैसे फैलता है, किस रफ्तार से, ये स्टडी थी। ओके, और इज देयर एनी चांस फॉर ओवरऑल थर्ड वेव? ये जो हाउस होल्ड में फैल रहा है, ये तो एक चीज़ काफ़ी क्लियर होती गई है अब तक कि हाईली ट्रांसमिसिबल है ओमिक्रॉन, और शायद डेल्टा से भी ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ऐसा तो लगभग एक व्यू बनता जा रहा है। तो यही दर्शाता है कि एक व्यक्ति जब घर में इन्फेक्शन लेके आता है, जब उसने बाहर मास्क नहीं पहना घर लेके आएगा, तो फिर ये बाकी मेंबर्स में भी जाएगा। पहले भी